السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان آج ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے، کیونکہ بلوچستان میں جو ہے وہ مختلف طبقے کے جو لوگ ہیں وہ احتجاج کرتے ہیں، جس کے بعد ان کے جو مطالبات ہیں وہ اعلیٰ حکام تک پہنچتے ہیں، اور اعلیٰ حکام کے پہنچنے کے بعد ہی جو ہے وہ ان کے مسائل یا تو حل کیے جاتے ہیں، یا اس حوالے سے ان کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا جو ہے وہ پالیسی وضع کی جاتی ہے یا کوئی رستہ بنایا جاتا ہے۔ اس کی ایک بڑی مثال ہمارے سامنے ٹیچرز ہیں، جو احتجاج جنہوں نے کیا، جس کے بعد ان کے مطالبات تسلیم ہوئے ہیں۔ اس سے قبل جس شعبے کی آج ہم بات کریں گے، اس سے قبل انہی شعبے سے جو ہے وہ تعلق رکھنے والے جو فارماسسٹ تھے، انہوں نے بھی ایک طویل احتجاج گزارا، جس کے بعد ان کے مطالبات منظور ہوئے اور ان کے لیے جو ہے ویکینسیز کریٹ ہوئی۔ اور اب کی جو تازہ ترین مثال ہے وہ جو ایچ سی جو پی ایم سی کی جانب سے ایک ٹیسٹ تھا، اس کے خلاف جو ہے وہ جو ڈاکٹرز تھے، آنے والے جو ڈاکٹرز تھے، اپ کمنگ فیوچرز کے جو ڈاکٹرز تھے، انہوں نے تقریباً 100 دن کا دھرنا اور ایک کیمپ گزارا، جس کے بعد ان کے جو ہے وہ مطالبات تسلیم ہوئے اور اب انہوں نے اپنا احتجاج ختم کیا۔ اسی کے ساتھ بلوچستان میں جو ہے وہ فزیکل تھراپی یا فزیو تھراپی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، وہ بھی ایک احتجاج کی انہوں نے کال دی ہے، اور احتجاج کے ذریعے اپنا جو ہے وہ مطالبہ یا جو اپنے جو مطالبات ہیں وہ منظور کرانے کے لیے جو ہے وہ انہوں نے تحریک کا آغاز کیا۔ اس سے قبل بھی ہم نے دیکھا کہ کوئٹہ پریس کلب کے سامنے انہوں نے احتجاج کیا، یا اپنے جو مطالبات ہیں اس کے حوالے سے حکام بالا کے ساتھ انہوں نے میٹنگز کی، اور اپنے جو مطالبات ہیں اس کے حوالے سے بازگشت یا گفت و شنید کا سلسلہ ان کی جانب سے جاری رہا۔ لیکن کیا وجہ ہے ان کے مطالبات کیوں تسلیم نہیں ہوئے، کیا صورتحال بنی ہے؟ کیا اسی سلسلے میں ہم نے سب سے پہلے رابطہ کیا سیکرٹری ہیلتھ بلوچستان نور الحق بلوچ صاحب سے، لیکن نور الحق بلوچ صاحب کچھ ٹیکنیکل یا اپنی کچھ ذاتی وجوہات کی بنا پر، مصروفیات کی بنا پر آج ہمارے پروگرام میں شرکت کرنے سے جو ہے انہوں نے انکار کیا، وہ قاصر ہے۔ لیکن البتہ ان کا یہی کہنا تھا کہ وہ اسٹوڈنٹس کے لیے تگودو کر رہے ہیں، اور ان کے جو مطالبات ہیں وہ منظور کرانے کے لیے وہ اپنی جو ہے وہ عط الوسع جو کوشش ہے وہ کر رہے ہیں۔ اسی اوور آل سچویشن پہ جو فزیکل تھراپی بلوچستان کے جو ہے وہ چیئرمین ہیں ڈاکٹر راشد رحمت صاحب، انہوں نے ہمیں جوائن کیا، ان سے ہم رابطہ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سیکرٹری صاحب سے آپ کے موقف پہ ہماری بات ہوئی، ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اپنی جانب سے کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے مطالبات یا مسائل جو ہیں وہ حل ہوں، لیکن کیا وجہ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تقریباً آپ کے مطابق کوئی 6-8 ماہ سے آپ احتجاج کر رہے ہیں، یا آپ نے جو مسائل ہیں وہ حکام والا تک پہنچا رہے ہیں لیکن حل نہیں ہو رہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کیا وجہ ہے، کیا ایسی آپ کے مطالبات ہیں جو گورنمنٹ ہے وہ ماننے سے انکاری ہے؟ سب سے پہلے تھینک یو دانش بھائی وقت دینے کا ہمیں۔ دانش بھائی دیکھیں، اس سے پہلے بہت سارے احتجاج ہوئے تھے، ہر ڈپارٹمنٹ، چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں، ایم بی بی ایس والے ہوں، چاہے ٹیچرز ہوں، وہ سب اپنے احتجاج کر رہے ہیں۔ بلوچستان میں ایک رواج چلا ہوا ہے کہ جب تک پروٹیسٹ نہیں کریں گے، جب تک روڈوں پہ نہیں آئیں گے، تب تک کوئی مطالبات آپ کے تسلیم نہیں کیے جائیں گے سسٹمیٹکلی۔ میں تو سمجھتا ہوں، جب میرا تو 8 مہینے کا ایکسپیرینس ہو گیا سسٹم سے اپنے حقوق حاصل کرنے کا۔ 8 مہینے سے میں سیکریٹریٹ کے چکر لگا رہا ہوں، ہمارے پاس ہر وہ ڈاکیومنٹس تھے جو باقی صوبوں میں کیا پروسیس ہے، اسپیشلی فزیکل تھراپی جو ایک فیلڈ ہے، جو شعبہ ہے، وہ بلوچستان میں نیو ہے۔ اس حوالے سے عموماً اس کے لیے رجحان بھی کم ہے، اور اس کے لیے اپورچونیٹیز بھی سمجھے کم ہیں۔ باقی صوبوں میں الحمدللہ وہاں پہ جو فزیوتھراپسٹ ہیں وہ کام کر رہے ہیں اور اچھے رزلٹ بھی دے رہے ہیں صحت عامہ کے حوالے سے، مگر بلوچستان میں اس کے حوالے سے نہ پبلکلی کوئی شعور ہے، نہ میں سمجھتا ہوں کہ سیکریٹریٹ میں بیٹھے جو ہمارے نمائندے ہیں، جو اسمبلی میں بیٹھے ہمارے نمائندے ہیں، ان میں بھی شعور کی کمی ہے۔ تو اس حوالے سے ہم نے ایون جو پچھلے گورنمنٹ کا ربابہ بلیدی جو ہیلتھ سیکٹری اس کے پارلیمانی ہیلتھ سیکٹری تھی، تو ہم نے ایک پریزنٹیشن اسے دیا تاکہ اس کو سمجھ میں، کیونکہ جو فزیکل تھراپی ہے وقت کے ساتھ ساتھ موڈیفائی ہوتا گیا، اس میں چینجز آتے گئے۔ اس میں پہلے جو یہ ڈگری تھا، یہ ڈپلوما لیول تھا، تقریباً 3 سال کا بی ایس سی فزیوتھراپی جو کرایا جاتا تھا، آؤٹ آف بلوچستان عموماً ہوتا تھا، کراچی میں، اسلام آباد میں۔ تو ابھی 2009 کے بعد اس کو ایچ ای سی نے ایک نیا کریکولم انٹروڈیوس کیا، اس میں اس کو 5 سالہ ڈگری بنا دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ 1 سال کا ہاؤس جاب بھی مینڈیٹری ہے۔ جب آپ 5 سال کے بعد اگر تھیوری پڑھتے ہو، 1 سال آپ کو کلینکل پریکٹس جو ہاسپٹل میں آپ کو پیشنٹس ڈیل کرنے ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم نے اپنی ڈگری 2014 میں اسٹارٹ کی تھی، اور 2019 میں اس کا اینڈ ہوا، اور کووڈ کی وجہ سے تھوڑا ڈیلے ہو گیا، اور ہمارا جو ہاؤس جاب ہے 2021 میں اسٹارٹ ہوا۔ 2021 میں ہم نے اپنا ہاؤس جاب شیخ زائد بن خلیفہ ہاسپٹل سریاب سے اسٹارٹ کیا۔ تو الحمدللہ ابھی ہمارا ڈگری بھی کمپلیٹ ہوا، 1 سال کا ہاؤس جاب بھی ہم نے کمپلیٹ کیا۔ تو اس کے بعد ہم نے اپروچ کرنا اسٹارٹ کیا مختلف جو گورنمنٹ کے
काबीना के लोग हैं जो पॉलिसी साज हैं बलूचिस्तान गवर्नमेंट में, तो हमने इनको अप्रोच किया। इस हवाले से हमने उनको बताया कि हम अब हमारे कंसर्न्स वो दूर किए जाए और हमें अपॉर्चुनिटी दिया जाए ताकि हम अपने आवाम की, अपने पब्लिक की सर्विस दे सकें। जो हमारा नॉलेज है और जो हमारे स्किल्स हैं उसके थ्रू हम यहाँ पे पब्लिक को सर्विस दे सकें। तो हमने स्टार्टिंग में समझा शायद इंशाल्लाह हमारे काम हो जाएं, क्योंकि एक डिमांड है ना फिजिकल थेरेपी का, हर सूबे में एक डिमांड है, दुनिया में हर जगह पे इसका डिमांड है। कुछ डिजीजेस हैं जो डिफॉर्मिटीज हैं, जैसे कि स्ट्रोक हुआ, बगैर फिजियोथेरेपी सर्विसेज के आप एक हैंडीकेप या जो शख्स स्ट्रोक से गुजर रहा है आप उसको रिहेबिलिटेट नहीं कर सकते। इसमें आप कोई भी ट्रीटमेंट, ड्रग्स और इस तरह के इंजेक्शन नहीं बने जो उसको सपोर्ट कर सकें। और हमने 12 कोशिश किया इस हवाले से। तो सेक्रेटरी साहब से, सेक्रेटरी हेल्थ नूर बलूच साहब से मैंने लास्ट टाइम मुलाकात किया, तो उसने कहा मेरा अथॉरिटी है नहीं, और अलबत्ता मैंने एक समरी बना के फाइनेंस को भेजा है। अभी वो जाने और आप जाने, फाइनेंस वाले जाने। तो हमने फाइनेंस वालों को भी अप्रोच किया इस हवाले से, हमें कोई खास वो रिजल्ट नहीं मिला, तो हम मजबूरन कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और दोस्तों से मशवरा करके अपने काबीना से और जितने भी फिजिकल थेरेपिस्ट हैं ऑल ओवर बलूचिस्तान, हमने फैसला किया है कि इंशाल्लाह अगले कुछ दिनों में हम एक भूख हड़ताली कैंप का इंतज़ाम करते हैं। क्योंकि यहाँ पे तो रिवाज बना हुआ है बलूचिस्तान में, जब तक आप रोडों पे नहीं निकलते, तो चाहे आप जिस भी प्रोफेशन से हो, आपका जितना भी ज़रूरत हो मुआशरे में, तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ इतने प्रोवाइड नहीं हो सकते। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि हमें वो देखते हुए मिल रहा है काफ़ी टाइम से, काफ़ी सालों से हम यही देख रहे हैं कि जब तक एहतजाज नहीं किया जाता, मुतालबात जो है वो तस्लीम नहीं होते। इस बात से हम भी आपके साथ इत्तेफाक करते हैं। डॉक्टर साहब, सिर्फ एक और चीज़, जैसे आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कोई 2-3 मुतालबात रखे थे, ये 3 मुतालबात जो है वो एक दफ़ा सिर्फ वो दोहरा दीजिएगा, और उसके बाद अगर हुकूमत मुतालबात नहीं मानती, चूँकि आपने कॉल की है भूख हड़ताल की, भूख हड़ताल में बैठे हुए अगर वहाँ पर भी मसले हल नहीं होते, कोई नतीजा नहीं निकलता, तो फिर क्या करेंगे? दानिश भाई, हमारे मुतालबात जीनियन मुतालबात हैं, और हुकूमत को भी चाहिए कि वो मुतालबात तो इजीली, वो पब्लिक इंटरेस्ट में है ना। हम चाहते हैं कि बलूचिस्तान के हर तहसील में और हर डिस्ट्रिक्ट में फिजिकल थेरेपिस्ट जो ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट किए जाएँ, उनके लिए जॉब्स अनाउंस किए जाएँ थ्रू कमीशन। जिस तरह से फार्मासिस्ट आज जॉब कर रहे हैं, जिस तरह एमबीबीएस वाले आज जॉब कर रहे हैं, तो इसी तरह फिजिकल थेरेपी थेरेपी जो फील्ड है वो किसी भी हॉस्पिटल सेटअप में या हेल्थ के शोबे में वो कलीदी किरदार अदा करता है। अब बाहर मुल्क तो खैर दूर की बात है, आप कराची में जाएं, किसी भी सूबे में जाएं, वहाँ पे जो हेल्थ सेटअप है, वहाँ पे जो हॉस्पिटल्स हैं, किस तरह से, मतलब अगर एक डॉक्टर है तो उसके साथ एक फार्मासिस्ट भी है, एक टीम वर्क होता है पेशेंट्स पर। इस तरह नहीं है कि आप पेरिफेरी में आज आप देखें क्या सिस्टम बना है वो बलूचिस्तान में, किस तरह से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, ब्लाइंड ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, वहाँ पे पेन को किस तरह से मैनेज कर रहे हैं। मैं खुद गया था पेरिफेरी, जब हमने डिग्री कंप्लीट किया तो एक सर्वे के लिए मैंने कहा जाऊँ, देख तो लूँ कि पेरिफेरी में किस तरह से ट्रीटमेंट किया जा रहा है, जो डिफॉर्मिटीज मैनेज होते हैं फिजिकल थेरेपी से, उनको किस तरह से मैनेज किया जा रहा है। तो वहाँ पे मैंने ये देखा कि हर पेशेंट जो लो बैक पेन की वजह से या किसी भी नर्व डिफॉर्मिटी हो, मस्कुलोस्केलेटल डिफॉर्मिटी हो, तो उनको स्टेरॉइड लगाया जाता है, और वो भी उनके डोज कैलकुलेशन, विदाउट कैलकुलेशन द डोजेस, इस तरह से ब्लाइंडली उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसके बहुत ही खराब साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो ये ट्रीटमेंट्स आज चल रहे हैं। और फिजिकल थेरेपी एक ऐसा ट्रीटमेंट है, एक ऐसा मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है जिसमें मतलब एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट होता है। उसमें मुख्तलिफ मॉडलिटीज़ यूज़ होते हैं, मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज यूज़ होते हैं, और कंसल्टेशन होता है पेशेंट का, और तब जाके पेशेंट को वो रिजल्ट मिलते हैं जो उसे मिलने चाहिए। क्योंकि इस तरह से तो अगर पेरिफेरी में देखा जाए जिस तरह से ट्रीटमेंट चल रहा है, तो पूरा बलूचिस्तान में तो अभी अभी देखिए कितने केसेस आ रहे हैं लो बैक पेन के, या तो डिफिशिएंसीज के, ये सारे ब्लाइंड ट्रीटमेंट की वजह से तो हो रहे हैं ना, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है इस हवाले से। तो हमारा एक मुतालिबा ये था कि बलूचिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में तहसील लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट डीएचक्यू हॉस्पिटल्स में फिजिकल थेरेपिस्ट के सर्विसेज को बहाल किया जाए, और फिजिकल थेरेपिस्ट जो ग्रेजुएट हुए हैं अभी और बाकी जो ग्रेजुएट होने वाले हैं उनको अपॉइंट किया जाए, ताकि वो अपने सर्विसेज से आम पब्लिक को सर्विसेज दे सकें, उनकी हेल्प कर सकें। दूसरा हमारा मुतालिबा ये था कि हमारे ग्रेजुएट्स
हाउस जॉब कर रहे हैं शेख जायद हॉस्पिटल सरियाब में। इसके अलावा बीएमसी में बोलान मेडिकल कम्प्लेक्स हॉस्पिटल में वहाँ पे भी अपने सर्विसेज दे रहे हैं एज हाउस ऑफिसर्स। अभी अपनी डिग्री वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो हमने गवर्नमेंट से ये दोनों मुतालिबात जो हमारे सर फहरिस्त थे, हमने कहा कि हमारे लिए जॉब्स का बंदोबस्त किया जाए, और जो ग्रेजुएट्स हैं अभी हाउस जॉब कर रहे हैं उनके लिए पेड हाउस जॉब का बंदोबस्त किया जाए। तो इस हवाले से हमने काफ़ी चक्कर लगाए, पर अभी तक हमें कोई ख़ास रिज़ल्ट नहीं मिला इसका। इन केस हमें गवर्नमेंट हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं करता, तो यही जो हर प्रोफ़ेशन के बंदे, हर फ़ील्ड के बंदे जो जो रास्ता अपनाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो हम उस पर जाने के लिए मजबूर हैं। हालाँकि हमने सेक्रेटरी साहब को बताया था कि हम प्रोफ़ेशनल्स हैं, हम चाहते हैं कि अपने स्टडीज़ से दूर ना रहें, हम अपने स्टडीज़ को कैरी करें, और मज़ीद नॉलेज जो हमें मिल रहा है हम उसको कंटिन्यू करें और पब्लिक को हम सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। इस तरह के पॉलिसीज़ ना बनाएं कि हमें अपने स्टडी से दूर रहें और प्रोटेस्ट और भूख हड़ताल की तरफ हम जाएं। तो इससे हमें हमारे नॉलेज को भी नुकसान होगा, हमारे वक्त को भी नुकसान होगा, और बलूचिस्तान ऑलरेडी मफलूज है, चाहे वो हेल्थ का निज़ाम हो, हर निज़ाम की तरफ अगर आप देखें तो वो मफलूज है। बिल्कुल एग्जैक्टली इस बात से दोबारा से वही है कि हम भी इत्तेफाक करते हैं, चूँकि बहुत सारे काम की जो है वो बलूचिस्तान में ज़रूरत है, सेहत की, तालीम सेहत के, और भी बहुत सारी चीज़ों पर। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे डॉक्टर साहब, इस वक्त कितने जो फिजिकल थेरेपिस्ट हैं, डॉक्टर जो बेरोजगार हैं, नंबर वन, और नंबर टू अभी आने वाले जो बैच होंगे आने वाले, इसमें चूँकि बताया जा रहा था कि चंद दिनों में अगली जो बैच है उसकी भी जो है वो क्या कहते हैं उसको, हाउस जॉब शुरू हो जाएगी। तो अभी आने वाले 2-4 सालों में कितने और बैच निकल सकते हैं इसके साथ ओवरऑल, क्योंकि बलूचिस्तान से हटकर पाकिस्तान सतह पर भी जो फिजिकल थेरेपिस्ट है वो वहाँ से डिग्री करके बलूचिस्तान आते हैं। तो ओवरऑल इस वक्त आपके ख्याल में, आपकी तंजीम के ख्याल में कितने जो फिजिकल थेरेपिस्ट है जो बेरोजगार हैं इस वक्त बलूचिस्तान में? दानिश भाई, अगर मैं बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से जो फारिग तहसील शुदा स्टूडेंट्स हैं उनका तादाद बताऊं, 250 तक इनकी तादाद होगा जो भी फारिग हुए हैं और हाउस जॉब भी कंप्लीट किया हुआ है। जो आउट ऑफ बलूचिस्तान जिन लोगों ने अपने डिग्री कंप्लीट किए वो एटलीस्ट 50 के करीब होंगे, 50। और इनका कंप्लीट एक डेटा नहीं है। जो आउट ऑफ बलूचिस्तान में जिन लोगों ने किया है वो करीबन तकरीबन 50 के करीब होंगे। और ये डिग्री जब से मॉडिफाई हुआ है एजीसी की तरफ से, डिग्री को इसमें मजीद चेंजेस लाए गए हैं, तो इसका डिमांड भी बढ़ गया है। हालांकि अभी इसका फीस भी इतना ज़्यादा हो गया है, और हर जगह पे इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं और वो ये डिग्री ऑफर कर रहे हैं। और एक और बदकिस्मती की बात यह है कि क्वेटा में तकरीबन कोई 3 से 4 इंस्टीट्यूट ऐसे प्राइवेट अभी खुल गए हैं जो ये डिग्री प्रोवाइड कर रहे हैं विदाउट जो मैंडेटरी होता है ये डिग्री देने के लिए, कि कौन कौन से लॉज होते हैं, वो लॉज फॉलो किए बगैर एचईसी की तरफ से जो लॉज दिए गए हैं कि जो इंस्टीट्यूट ये डिग्री प्रोवाइड करेगा इन लॉज के थ्रू वो प्रोवाइड करे। अलबत्ता वो किसी भी लॉ को फॉलो नहीं करे। इस हवाले से भी हमने आला हुकाम को बताया था कि चेक एंड बैलेंस रखें, ताकि ऐसा ना हो किसी ने भी जाके कोई घर किराए पे लिया, कोई बिल्डिंग किराए पे लिया, और बस एडमिशन स्टार्ट किया और एफिलिएटेड है विद बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी और या तो किसी और यूनिवर्सिटी से वो डिग्रियां दे रहा है। आने वाले अभी जो 250 के करीब जो फारिग हुए हैं, 300 लगा दें विद द वंस हु केम फ्रॉम द अदर प्रोविंसेस, तो उस 300 के करीब जो ग्रेजुएट्स हैं वो बैठे हुए हैं, बेरोजगार हैं, वो अपने सर्विसेज देने के लिए तैयार हैं। और मजीद 2 बैच ऐसे हैं वो फारिग होने वाले हैं, उनका हाउस जॉब अभी स्टार्ट हुआ है, और इस साल के एंड में इंशाल्लाह उनके भी हाउस जॉब कंप्लीट होंगे और वो भी फारिग होंगे। बलूचिस्तान के दानिश भाई, इसी वजह से तो हमारे कंसर्न बढ़ रहे हैं कि जब ये बाकी ग्रेजुएट अपने हाउस जॉब कंप्लीट करेंगे, फिर एक रश लग जाएगा और एक कंपटीशन होगा। तो हम चाहते हैं कि सेक्रेटरी साहब फौरी तौर पर इस हवाले से कोई इक़दामात उठाए और हमें मजबूर ना करे कि हम रोडों पे आज तो लॉज की आपने बात की, लॉज के हवाले से हम ये देखते हैं कि बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में भी लॉज को उस तरह जो है वो फॉलो या इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता जिस तरह एचईसी ने पॉलिसियां रखी हैं। तो बहरहाल अभी बता रहे थे मैं, डॉक्टर राशिद रहमत के अभी तक तकरीबन कोई इनके एदाद शुमार के मुताबिक 3 डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपिस्ट हैं वो फारिग तहसील, और वो जो है वो जॉब करते हैं। इसी के साथ ये मौजू जो है वो हम यहीं पर इख्तिताम पजीर करते हैं। इंशाल्लाह एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, लेकिन आज तक के लिए जो मौजू है वो इंतहाई हसास है।
حکومت محکمہ صحت اور جو دیگر حکام اعلیٰ حکام ہیں ان کو اس حوالے سے جو ہے وہ اقدامات کرنے چاہیے تاکہ جو ہمارے آنے والے مستقبل کے جو ڈاکٹرز ہیں یا مستقبل کے معمار ہیں ان کو اس حوالے سے جو ہے وہ زیادہ تر پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو اسی موضوع کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.